संविधान के मूल्यों और सांसदीय परंपराओं के सम्मान के साथ माननीय अध्यक्ष की अनुमति से हम इस युवा सांसद की कार्यवाही का शुभारंभ करते हैं। So I would in the beginning call upon code number 47 to present his motion. नमस्कार। शुरुआत संत तुकाराम महाराज के एक अभंग से करता हूँ। हड़ू हड़ू चला कोणी कोनाशी न बोला। इसका अर्थ ऐसा है कि परमार्थ के कार्य में धीरे धीरे चलिए और अंतर्मुख होकर चलिए। ऐसे ही राष्ट्र हित के कार्य में आरएसएस ने अपना शताब्दी वर्ष पूर्ण किया, परंतु आज भी एक प्रश्न उठता है कि संघ ने राष्ट्रोत्थान के लिए कार्य किया है या फिर केवल सांप्रदायिक या वैचारिक उन्नति के लिए। जिस समय हमारी मातृभूमि गुलामी के अधीन थी, इस देश में मूर्ख कहलाए जाना ज्यादा आसान था। तब 1925 में रत्नागिरी की जेल में सावरकर जी से प्रेरित होकर डॉक्टर साहब ने आरएसएस की नींव रखी थी। मैं एक और चीज कहता हूं कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्त्र दुर्लभः। मैं अपनी बात को रखने के लिए थोड़े समय की मांग करता हूं। इसके बारे में ये बताता हूं, ऐसा कोई अक्षर नहीं हमारी वर्णमाला में जिससे मंत्र ना बन सके, ऐसा कोई मूल नहीं जिससे औषधि ना बन सके, उसी तरह ऐसा कोई पुरुष नहीं जो अयोग्य हो। बस एक योजक की देर है और वही योजक है हमारा आरएसएस। कई अटकलें आई, कई बंदिशें लगी, परंतु संघ कभी गिरा नहीं, रुका नहीं, दृढ़ता से साथ में राष्ट्रहित में कार्यरत रहा। संघ की इस यात्रा को 3 चरणों में देखा जा सकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मेरे सभी सांसदगण, young minds with the strong values can shape the future of the nation, and I'm very delighted that our ruling party really care about the nation. Well, despite the fact that the RSS is one of the organization which leads to the Quiet India movement. So while you are calling the Quit India movement in the 17th July 1947, over the 52 years of the RSS, they haven't flagged the host of the India in the Nagpur itself. So why is it valuable, sir? Is it really raising the motion, or is it really worth it to having an organization which doesn't develop the country itself? And sir, I would like to quote a last thing. If you can't say wrong to a wrong, then you are at the last stage of slavery. And I'm sorry, sir, that we are not slaves of any organization or any country. I am a proud Indian citizen. Thank you, sir. Well said by Dr. Ambedkar that the constitutional morality is not a natural sentiment. It needs to be cultivated. Good morning, Honorable Speaker, sir, and everyone present in this house today. We must ask, is the RSS building a nation, or is simply expanding the ideology? To build a nation, one must respect its symbol, right? Yet, for 52 years, the RSS refused to host the national tricolor at its headquarters. Secondly, in 1942, they stay away from the Quit India movement. I have a simple question. Can a movement be a national builder if they have been absent during a nation's birth and ignore its lack for half-century? A nation builder integrates, whereas an ideology segregates. In a book of Bunch of Thoughts, the leader Ms. M.S. Gonsalves labeled the old Muslims and Christians neighbors as angels and pigs. When you treat millions of fellow citizens as guests and treats, you aren't house. You aren't building a house. You're dividing it. Look at the affiliates. You are looking at affiliates like the Bajrang Girls. National builder requires a rule of law, but this group often chooses the rule of the mobs. Stop the moral policy in disturbing the festivals of other minorities. An organization claim to the builder if its associates engages in action that the Supreme Court itself states as a characterizes as a egregious violation of the law. I have a simple question. May I conclude? Yeah, please. 20 seconds. Okay. So firstly, I have 3 questions. I want to firstly, how can you be a national if you once preferred municipality over the constitution? Secondly, how can you be the builder when ideology identifies your own enemies as enemies?
India while excluding women from your own core leadership. Few builders follow preamble or the private scripts. The RSS is not the architecture of future, they are the followers of the divided past. Thank you so much and Jai Hind. Now I would like to call upon code number 136 to present. धन्यवाद प्रगति महोदय। सबसे पहले बात करेंगे एलओपी साहब ने जो कहा कि फ्लैग कोड जो था फ्लैग होस्ट नहीं किया था 52 ईयर्स में, तो आप प्लीज लॉ पढ़ के आइए 2002 जब तक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नहीं आया था तब तक कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने पॉलिटिकल में एक कोई भी नेशनल फ्लैग होस्ट नहीं कर सकती थी। 2002 में नागपुर में रेशम बाग में यहीं पे 2002 के बाद जब फ्लैग कोड आया यहीं पे रेशम बाग में नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया था। आप एलिगेशन लगाना और देश की जनता को गुमराह करना बंद करिए। दूसरी बात, गोलवालकर जी की बात हुई कि गोलवालकर गुरु जी ने कहा कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम जो है ये इंटरनल थ्रेट्स है। वो ये भी कहते थे कि अगर कोई क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर अपनी भारत माता को अपनी राष्ट्रभूमि मानता है तो उससे बड़ा हिंदू भी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, मनुस्मृति को कोट किया गया था। मनुस्मृति को कोट करने वाली बात अगर इन्होंने अभी मुझे कोट करके दे दी कि इन्होंने कहा आरएसएस ने कहा है कि मनुस्मृति कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, तो मैं अभी अपना पद छोड़ने को तैयार हूं। तीसरी बात, वुमेन फ्रॉम सेंट्रल लीडरशिप की बात आई थी। इन्हें पता नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति भी करके विंग होती है जो वुमेन विंग है, जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क करती है। ये कह के मैं अपने रिप्लाई को विराम देता हूं। धन्यवाद। Now I would like to call upon code number 25 to present his reply. Is somewhere the reason which allows small organization RSS pulls the string for communal violence. They think with their mentality Hindutva se Hindustan hai, but unfortunately the tagline of my nation is diversity in unity. Diversity. Okay. Unfortunately, my nation. Okay. They think they'll lead India to be the Vishwaguru, but I'll prefer be the student first. And the Vishwaguru they want to be is like Dronacharya, and the thumb for Eklavya will be Muslims in Muslims in India or the tribal people which they don't cooperate with. I greet this esteemed house with the utmost respect and sincerity. सर, जैसे कि आपने बोला कि अगर कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन खुद को एक भारतीय होने का हक ज्यादा दिलाता है तो वो हमसे ज्यादा भारतीय है, तो फिर ऐसा क्यों कि आप हमें सप्रेस करते हो भारत माता की जय बोलने के लिए? ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं और ऐसे बहुत सारी जगहों पे आप देख सकते हैं कि जो लीडर्स एंड वर्कर्स ऑफ आरएसएस है उन्होंने हमें सप्रेस किया कि भारत माता की जय बोलिए। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन रूल है जहाँ पे हमको प्रोवोक किया जाए? कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप हमको सप्रेस नहीं कर सकते बोलने के लिए। और सर, आई वांट टू कंक्लूड। सेकंड और लीजिए आप। जो संगठन खुद को डेमोक्रेटिकली रजिस्टर नहीं करना चाहती वो कैसे डेमोक्रेसी की पिलर्स पे खड़ी होगी? नहीं कर सकते। हम इंडिया में रहते डेमोक्रेसी की बात करेंगे, हम सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे। हम जैसे हमारे आरएसएस की वैल्यूज के बारे में बताया, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आरएसएस पर कितने वार किए गए। 1948 में पहला वार की गांधी हत्या की गई आरएसएस के द्वारा, पर कोई प्रूफ नहीं मिला। उससे पहले जब और उसके बाद आरएसएस को बैन कर दिया गया तब थे हमारे सिर्फ 6000 स्वयंसेवक संघ, पर जब बैन हटा तो वही आंकड़ा बन गया 5 लाख का। कैसे? 1975 में इमरजेंसी जब हटाई गई, जब लगाई गई आपकी इंदिरा गांधी के द्वारा, तब भी स्वयंसेवक संघ 70,000 जेल में डाले गए। उसके बाद मैं इतना कहना जरूर चाहता हूँ कि तुम जेल भेजो, हम और ताकतवर होकर निकलेंगे। तुम बैन करो, हम और बढ़कर होकर निकलेंगे। तुम प्रोपेगेंडा फैलाओ, पब्लिक हमें ही अच्छा समझेगी। लोग मुझे चाणक्य बोलते हैं, पर चाणक्य तो एक ही है। आरएसएस लाखों चाणक्य पैदा करती है, पर जो अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा जीने मरने को तैयार है। Now I would like to call upon code number 2 to present his motion. आरएसएस ने क्या क्या किया है वो बताऊंगा।
Honorable Speaker, I am not saying just to respect the nation alone. You have your own morals, your own ideas. But I ask, if the organization's name could contain Rashtriya in it, then why can't the idea reflect it in its actions? I not only conclude RSS as an ideological movement, I also consider you as the greatest inspiration from the British. The British initiated divide and rule, and you believed in remove and unite. Concluding my point, I would like to add a shairi to it. RSS एक सिल्वर मैपल पेड़ की तरह है. RSS एक सिल्वर मैपल पेड़ की तरह है. जड़ें हैं इसकी बहुत कच्ची. ये हवा में हिल जाएगा. दिखावे का ये ढांचा बहुत जल्दी एक दिन खुद ही गिर जाएगा. Thank you. I would request court number 47 to present his reply. आपने पूछा आरएसएस ने क्या किया। आरएसएस की 100 साल की जर्नी को 3 चरणों में समझाता हूं। पहला चरण जिसमें चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण किया। चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण किया तो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया जिसको पूरे राष्ट्र ने स्वीकार और अंगीकार किया। अटल बिहारी वाजपेयी इसके साक्षात एग्जांपल है। उसके बाद द्वितीय चरण व्यवस्था निर्माण करने में आया तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाई कि विद्यार्थियों का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बड़ा कोई संघ नहीं हुआ। उसके बाद कृषकों के लिए भारतीय किसान संघ और पॉलिटिक्स में तो आपके अपोजिशन में बैठने की वजह बीजेपी भी नहीं संघ नहीं बनाई है। समझे? आदिवासी की बात करते हो और आदिवासी कल्याण के लिए वनवासी कल्याण आश्रम ने बस्तर में जाके क्या किया खुद जाके देख लेना। वहां पे एकल विद्यालय खोले जहां पर नक्सलियों के कारण एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा था, वहां आरएसएस एजुकेशन लेके गया है। समझ में नहीं? Alright, now I would request court number 6 to present his reply. माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा मनुस्मृति की बात करें इनने 1870 के पहले की मनुस्मृति कहाँ है मुझे ये लाके दे दो। 1870 के पहले मनुस्मृति थी ही नहीं। एक था मान्यवर जर्मन था, जर्मन वो कन्वर्ट करा था उसने, उसका नाम था मैक्स मूलर। मनुस्मृति को कन्वर्ट करा, उसने बताया क्या लिखा उसकी फिर रद्दो बदल इन लोगों ने करे जाके। दूसरी बात है वंदे मातरम था, भूलिए मत राष्ट्रीय स्वयं संघ के द्वारा चलाया जाने वाला राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी संघ का ही है। जब वो वंदे मातरम बोल सकता आप क्यों नहीं बोल सकते वंदे मातरम? माननीय अध्यक्ष महोदय, संघ की परिभाषा एक स्टेट संघ का ही गीत है, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। अगर ऐसी भावना का विरोध कर रहे तो खुद को एंटी नेशनलिस्ट का टैग खुद को दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ये बोलते परिवर्तन क्या है? परिवर्तन क्या है? मैं कोट कर रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं करता कोई। 15 अगस्त 1998 को अटल जी ने लाल किले की प्राचीर से ध्वज फहराया और तमाम लोगों की, भारत के तमाम लोगों के आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि पहली बार कोई स्वयं सेवक को हम लोगों ने लाल किले से झंडा फहराता हुआ दिखा। परिवर्तन क्या है? 16 मई 2014 को हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार आई तो ये लंदन से निकलने वाला एक नाम था अखबार का संडे गार्डियन, उसके एडिटोरियल छपा था 18 मई 2014। उसमें क्या लिखा था? 16 मई 2014 should be remembered in Indian history on which the Britishers finally left India। मान्यवर क्योंकि इनकी मानसिकता ब्रिटिश लोग से जुड़ी हुई थी और इनके ब्रिटिश लोग के हिसाब से ये चल रहे थे, इसलिए इनकी विदेशी सोच है और इनकी सोच इसलिए देश के विरुद्ध है। पार्टी के विरोध में जाते जाते ये देश के विरोध में चले गए, ये नहीं पता और देश को कितना लूट के खाई है पूरा देश जानता है। 200 से ज्यादा घोटाले गिना सकता हूँ अभी के अभी। धन्यवाद महोदय। Now I would request वंदे मातरम बोलने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वंदे मातरम का मतलब है आई गो टू दिस लैंड और हम दिन में 5 वक्त इस लैंड को गो करते हैं। बात है फोर्समेंट की, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आई हैव राइट टू स्पीक एंड राइट नॉट टू स्पीक। तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कुछ भी बोलने के लिए, फिर चाहे वो नेशनलिज्म के लिए हो फिर चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। I would request LOP code number 182 to present his reply. शुभराम शीतला सत्य शांता मातरम वंदे। एंड यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ गया कि आरएसएस की बात आ गई तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? कि यही इनका सिर्फ एकमात्र नाता है कि नेशन को आगे नहीं बढ़ाना है पर हिंदू को आगे रहना चाहिए। यहाँ पे नेशन जहाँ मालन्यूट्रिशन से जूझ रहा है, यहाँ पे नेशन जहाँ पे लोगों को घर नहीं है, जहाँ रहना खाने वाली है, बेसिक नीड
नहीं अध्यक्ष महोदय, और यहाँ पे हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं। यहाँ पे इन्हें बैठने की क्या इतनी तमीज है कि यहाँ पे नेशन में हर कल्चर का रिस्पेक्ट होना चाहिए, हर एक को प्रॉपर माल न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। क्या वो नहीं देख रहे हैं? हिंदू बच्चे के हाथों में इन्होंने स्वॉर्ड पकड़ाई है, इन्होंने हथियार पकड़ाए हैं। क्या इन्हें हक है? क्या इन्हें हक है हर घर जाके लोगों को भड़काने का? क्या इन्हें हक है? अब मैं कोड नंबर 193 से कहना चाहूंगा अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय सदस्यगण, शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी संगठन की शताब्दी पर चर्चा करना सम्मानजनक है, पर सवाल यह है कि क्या उम्र और गतिविधियां किसी भी संगठन को राष्ट्र निर्माणकारी बताती है? राष्ट्र वही बनता है जहाँ समानता, न्याय और बंधुत्व दिखते हैं, पर जहाँ केवल अनुशासन और एक संस्कृति की आवाज गूंजती है, वहाँ लोकतंत्र के सपने मिटते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन भारत की आजादी की स्तंभ थे, जिसमें लाखों भारतीयों ने जेल, लाठी, बलिदान दे दिए। लेकिन इन आंदोलनों में आरएसएस का संगठित योगदान इतना दर्ज नहीं है। इतना ही नहीं, आजादी के बाद भी आरएसएस ने तिरंगे का प्रखर विरोध किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एक संगठन संविधान के समावेशी मूल्यों के बजाय अपनी संस्कृति पहचान को प्राथमिकता देता है, तब वह राष्ट्र निर्माण सिद्धांतों का पालन नहीं करता, बल्कि वह वैचारिक संगठन ही बनकर रह जाता है। अंततः मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्र किसी एक विचार से नहीं बनता, राष्ट्र बनता संघर्ष, न्याय और अधिकार से। राष्ट्र वहां जन्म लेता है जहाँ तिरंगा समय पर लहरा है, जहाँ संविधान सर्वोपरि हो, जहाँ समानता केवल शब्द नहीं तो व्यवहार हो। जो संगठन आजादी के वक्त खामोश रहे, जो विविधता से डरकर एक रंग फूटे, वो राष्ट्र नहीं करता, वो विचार बोलता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 100 वर्ष का निष्कर्ष यही है कि आरएसएस एक वैचारिक संगठन है, न कि राष्ट्र निर्माणकारी संगठन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोड नंबर 136 से अपनी बात रखें। सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि आरएसएस किसी रिलीजन को सपोर्ट करता है, तो पहली बात तो ऐसा नहीं है। आरएसएस मॉरल्स को सपोर्ट करता है, एथिक्स को सपोर्ट करता है, जो हमारी संस्कृति इतने सालों से चलती आ रही है, सही संस्कृति, आरएसएस उसको सपोर्ट करता है। दूसरी बात, आरएसएस ने देश को क्या दिया है? आरएसएस ने हमेशा से देश के लिए अच्छा सोचा और अच्छा किया है। जब गुजरात को जरूरत थी 1990s में, आरएसएस ने वहां पे भी सेवा दी है। आरएसएस का मुख्य उद्देश्य सेवा देना और संस्कृति जपना ही है। हमारी एकता ही हमारा मान है, सेवा और संस्कृति यही आरएसएस का शासन है। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा कोड नंबर 176 से अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरएसएस को इस वर्ष 100 वर्ष हो चुके हैं एंड इसकी संस्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार द्वारा की गई थी। उसके पक्ष में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी कि उन्होंने गत 100 वर्षों के दौरान क्या क्या कदम उठाए हैं हमारे देश को विकास के लिए। ये बात है कि सब लोग इस पर आलोचना करते हैं इस संस्था पर कि ये हिंदुत्व को बढ़ावा देता है, परंतु पिछले 100 वर्षों के दौरान इन्होंने गोवा को आजाद कराते समय इन्होंने हमारे देश की 10 सेकंड इंडो चाइना वॉर के समय हमारे आर्मी की मदद की, और यहाँ पर आरएसएस ने बहुत सारे स्कूलों की संस्थापना भी की है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अब मैं निवेदन करूंगा कोड नंबर 193 से अपनी बात रखें। 193 कोड 138 अवनी हंगारी। रिस्पेक्टेड चेयर, ऑनरेबल चेयर, आज हम यहाँ पर किसी भी जाति वादी या फिर किसी रिलीजन में बात करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि इसके लिए बात हुआ है कि आइडियोलॉजी क्या थी, इन्होंने 100 वर्षों में क्या किया है। आरएसएस की आइडियोलॉजी हमेशा सोशलिज्म, हिंदुत्व, नेशनलिज्म इनके प्रमोट करती थी। हिंदुत्व हम कैसे कर सकते हैं इंडिया में? यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रिलीजियंस, भाषाएं सब आती है, वहाँ पर आप हिंदुत्व कैसे ला सकते हो? और बोलते कि इक्वालिटी पर बिलीव करती है। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, सही में इक्वालिटी पर बिलीव करती है? यहाँ तक कि लीडर, खुद आरएसएस के लीडर, यहाँ तक कि कोई भी लोअर कास्ट का कोई लीडर नहीं बना है आरएसएस का। ऐसा क्यों? ये सारे टॉपिक भी ठीक है, एक बार के लिए हम साइड रख देते हैं, बट और एक टॉपिक है जो कि हमारे देश के लिए है, टैक्सेस। हमारे लोअर कास्ट के लिए या फिर
spirit is not about their ideology. Alone, it's about it standing with the people, defending Constitution, and people defending Constitution, speaking for those who cannot do it. Thank you. This is a true Now I message would- of the social worker. Thank you. Now I would request, now I would request code number 82 to present his reply. लाइक यू सेड कि ये धर्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, तो अपने धर्म, देश, वंश पर गर्व करना स्वाभाविक है। एक एग्जांपल देती हूँ, मैं सबके माता पिता की इज्जत करती हूँ, पर जहाँ बात मेरे माता पिता की आएगी वहाँ मैं ज्यादा झुकूंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके माता पिता का विरोध कर रही हूँ या मैं उनके खिलाफ हूँ, पर जब बात मेरे माता पिता की आएगी तो मैं उनके सामने झुकूंगी और उनका आदर भी करूंगी और उनका स्टैंड लेना मेरा। तो इससे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई भी आरोप लगाना गलत है। Now I would request code number 6 to present his reply. माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने अभी बात की थी शायद इक्वलिटी की, है ना? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चित्र है 2012 में माननीय अध्यक्ष महोदय इनकी सरकार की, ये एनसीईआरटी में लाने थे। देखिए कितनी अपमानजनक बातें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कर रहे हैं, इनकी मानसिकता इक्वलिटी की रखते हैं। मान्यवर, दूसरी बात, ये आरएसएस सामाजिक समरसता लाता है। अब ये हिंदू सोसाइटी को डिवाइड किसने किया? हायरार्की किसने डिसाइड करी? हिंदू, ये माली ऊंचे की, तेली ऊंचे की, सोनार ऊंचे की, लोहार ऊंचे, कौन? उसका नाम था ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट प्रिस्ले। अभी मान्यवर 6000 से ज्यादा कास्ट है। जातिगत जनगणना जो लोग कराने के लिए बोलते हैं, जाति में बांटने की राजनीति इनकी और कुछ नहीं है मान्यवर। Now I would request, thank you. Now I would request code number 47 to present his reply. अभी आपने बात करी इक्वलिटी की। आरएसएस की किताब है पंच परिवर्तन, अभी इसी साल रिलीज हुई है शताब्दी वर्ष पे। इसमें समरसता एक टॉपिक है कि समाज को समरस बनाना है। इसमें लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि चारों वर्ण गुण व कर्म पर आधारित है, ना कि जन्म पर आधारित है। ऋग्वेद का इसमें एक मंत्र आता है कि अजस्तेषो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वावृद्धो सौभगाय युवा पिता स्वभा रुद्र एशाम सुदगा प्रजनी सुदिना मरुगव्य। अर्थात कोई ज्येष्ठ नहीं है, कोई कनिष्ठ नहीं है, सब भ्राता है, सब बंधु है, सब भाई है। अरे आपने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हर बार मुस्लिमों को भी छला है, यादवों को भी छला है। आप बताइए, याकूब मेमन और एपीजे अब्दुल कलाम जी का नमाज जनाजा एक दिन था, कितने लोग कहां गए आप बता दीजिए। आपके एक ने पहले तो ये कर पहले था कि 26/11 आरएसएस ने करवाया है। Code number 136. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। तो सबसे पहले तो एक लाइन से अभी रिप्लाई देंगे अपोजिशन को। सबसे पहले कहा गया है इनके द्वारा कि विश्वगुरु स्टूडेंट वाला जो आया, आप एक एपिक में से उठा के द्रोणाचार्य और एकलव्य का नाम लेके आप एक ऑर्गेनाइजेशन को और एक भारत को, आप अपने खुद के देश को, खुद के राष्ट्र का विश्वगुरु का नहीं दर्जा देते हैं। इससे शर्मसार दिशा आज तक कभी किसी अपोजिशन ने नहीं दिया मेरे हिसाब से। आगे बात करते हैं सर कि रूट्स वीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन 100 साल टिक जाए और जो 2 लोगों और 15 लोगों की कमिटी से निकल के करोड़ों और लाखों में उसका संख्या चल जाए, वो संस्था वीक नहीं, आपकी इनसिक्योरिटी दिखाती है। बाकी की बात आती है सर माल की। माल न्यूरिशमेंट का इन्होंने एक मुद्दा उठाया था। मैं बताना चाहूंगा, आज देश में जो सबसे माल न्यूरिश स्टेट है जो है वेस्ट बंगाल, वो इन्हीं का रूल है सर, इन्हीं की सत्ता है वहां पे। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बांग्लादेश के लोगों को अपने यहाँ पे लाए हैं वोटिंग बैंक के लिए, और तब उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। जबकि सबसे समृद्ध देश, सबसे समृद्ध जो स्टेट है, ये हमारा रूल है। इसके आगे सर एक लास्ट बोलना चाहूंगा, जिन्होंने लोअर कास्ट की बात करी है कि हमारा कोई उच्च नेता जो रहता है आरएसएस का, वो दलित लीडर नहीं रहता है। मैं बताना चाहूंगा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब, चारों जगहों पे जो दलित लोग हैं, इनको उपनयन का अधिकार आरएसएस देता है। हर साल गुड़ी पड़वा के दिन पे, नववर्ष के दिन पे लाखों हजारों के संख्या में उनका उपनयन होता है। और ये उपनयन ऐसे नहीं कि उनको अधिकार दिया जाता है, इट इज अ सिंबॉलिक वे टू एंड द रिचुअल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड द दलित्स इन हिंदू कल्चर। धन्यवाद। कोड नंबर 139. I'll just yes, please continue. मेरा जवाब पीएम जी को होगा कि उन्होंने क्या कहा था कि आरएसएस ने क्या दिया है।
शायद आरएसएस ये भी भूल जाता है कि 2024-25 के इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स IHL इंडिया हेट लैब और CSHO सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट, उसके अकॉर्डिंग आरएसएस ने 13% रेट बढ़ाया है किसमें माइनॉरिटीज के ऊपर हेट स्पीच फैलाने। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन था कोड नंबर 193 से, तो मैम ने बोला कि इक्वालिटी नहीं है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आरएसएस रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू 35,000 प्लस सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हुए, 35,000 प्लस अकॉर्डिंग टू द PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च वगैरह, एंड आई विल गिव यू द सोर्सेज। तो आप और वो जो हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो कोई लोअर क्लास पर्सन को भी उतना ही प्रिविलेज दे रहे हैं, उनके लिए उतना ही काम कर रहे हैं जितना हायर क्लास के लिए कर रहे हैं। सो हाउ कैन यू से दैट आरएसएस इज प्रमोटिंग इनइक्वालिटी? दैट इज माय क्वेश्चन। ओके, मैम ने कहा था कि इक्वालिटी कहाँ है? जस्ट लाइक यू सेड, जब बोल सकते हो तो सुनने की भी क्षमता रखिए। आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए। आरएसएस के द्वारा 35,000 प्लस वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हुए हैं जो कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एनी कास्ट वगैरह। ओके, आई विल गिव यू सोर्स। सो हाउ कैन द ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से दैट जो आरएसएस है वो इनइक्वालिटी प्रमोट करता है, जबकि वो तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबकी मदद कर रहा है, सबकी। और अगर डिस्क्रिमिनेशन करना होता तो वेलफेयर प्रोजेक्ट इतने होते नहीं, और जब हो रहे हैं मतलब डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहता। दैट इज माय क्वेश्चन। ये कैसे कह सकते हैं? बताइए। अगर आप ग्राउंड लेवल पर आज भी अगर चीजें देखेंगे, मैं ग्राउंड लेवल की बात करूंगी, आप आज भी देखिए, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, आज भी कॉलेज में सबसे पहले बात करने से पहले कास्ट क्यों पूछी जाती है? फिर आज पूछी जाती है, मंदिरों में जाते वक्त भी कास्ट पूछी जाती है, क्यों पूछी जाती है? ये इक्वालिटी होती है, इसको तो इक्वालिटी नहीं बोल सकते ना। और इन्होंने कहा सोशल वर्क आरएसएस का फॉर्म ही सोशल वर्क करने के लिए हुआ था। डॉक्टर श्री रेड्डी ने भी फॉर्म इसका सोशल वर्क करने के लिए ही किया था। तो मैं डिनाई नहीं कर रही कि वो सोशल वर्क नहीं करते, मैं तो ये बोल रही हूँ कि वो सोशल वर्क करता है तो उन्हें तो आवाज उठानी चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं हमारे कि इक्वालिटी होनी चाहिए, तो इसके बारे में वो बढ़कर आवाज उठाए। मैं ये बोल रही हूँ। आप कह रही कॉलेज में कॉलेज आरएसएस का है क्या? आप कह रही कॉलेज में कास्ट पूछी जाती है? ऑब्वियसली कॉलेज आरएसएस का नहीं है, पर एजुकेशन पॉलिसी तो है ना। तो गवर्नमेंट को बोलिए आरएसएस का चालू करने। उनको अपनी बात रखनी है। हाँ, गवर्नमेंट बीजेपी आपके भी इसमें आती है, तो फिर कैसे आप? तो मैं तो बस बोल रही हूँ। थैंक यू सर। आप जाओ काम करो। मेरा पहला, मुझे सिर्फ एक लाइन में मैं ये पूछना चाहती हूँ, कॉलेज आरएसएस का है क्या? दूसरी चीज़, ये जो ऑनरेबल मैडम बोल रही है कि कॉलेज में और गवर्नमेंट का भी उसमें क्या रोल है? लाइक एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का उसमें लुकआउट है, गवर्नमेंट का अगर कॉलेज नहीं है तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? और दूसरी चीज़ कि मैडम का आंसर बहुत अनफेवरेबल था सर, सॉरी। थैंक यू। Now I would request code number 199. विषय रखने जा रहा हूँ, आरएसएस के 100 वर्ष राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी थे क्या? मित्रों, सर्वप्रथम यहाँ पे मेरे विपक्षी साथियों का कहना है कि आरएसएस मात्र कट्टरवाद को जन्म देता है। मैं उन सभी को बताऊंगा कि हमारी जो विचारधारा है, जिसमें हम जो कट्टरवाद जो बोलते हैं, जिसमें हम परिभाषित करते हैं कि आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमि का पितृभू पुण्य भूमिश्च स हिंदू स्मृतः। इसका अर्थात यह होता है कि भारत में सिंधु नदी से लेकर कन्याकुमारी नदी तक रहने वाला हर एक व्यक्ति भारत का हिंदू माना जाता है, जिसमें हम यह बोलते हैं कि यदि भारत में कोई भी व्यक्ति रहता है वह हिंदू है। इसके अतिरिक्त मैं यह बताना चाहूंगा कि यह मेरे विपक्षी साथी का कहना है कि आरएसएस क्या क्या कार्य करता है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि 1962 के युद्ध के दौरान पर आरएसएस ने कार्य किया था, और उस समय जिस प्रकार से 26 जनवरी की परेड में आरएसएस को शामिल किया गया था, क्या यह एक किस प्रकार से चीजें की गई थी। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आरएसएस जिस प्रकार मेरे विपक्षी साथी ने कहना है कि
किस प्रकार वो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रशांत टिकेटकर करके जिन्होंने गढ़चिरौली के नक्सलवादी एरिया में जहाँ पे गरीब आदिवासी बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया, क्या ये राष्ट्र निर्माण के लिए व्यापी नहीं है? कोड नंबर 138। Okay, so code number 140, here we are. So I would like to start with जहाँ विविधता में पहचान बसती है, वही सच्चे भारत की आत्मा बसती है. In our India, 80% of the population of India, 1.4 billion people are Hindus, but there are also millions of Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, and Jain. The Constitution defines India as secular country. So why is RSS more inclined towards the Hindutva? Okay, so I would also like to tell that अगर आप बात करते हो कि हिंदू भाई की, तो मुस्लिम भाई कहाँ गए, क्रिश्चियन भाई कहाँ गए? हर दिन हम स्कूल में बोलते हैं कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो उन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का क्या हुआ? क्या सिर्फ हिंदू ही हमारे भाई हैं क्या? बाकी के रिलीजन हमारे भाई बहन नहीं हैं क्या? उनके माता पिता नहीं, अगर यहाँ पे किसी ने बोला कि अगर उनके माता पिता पे सवाल उठाया जाएगा तो हम तो बोलेंगे, तो क्या इनको हक नहीं है इनके पॉइंट बोलने का? क्या हिंदुत्व ही होना चाहिए? कोड नंबर 122 टू रिप्लाई। ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे पहले ये कहा गया कि आरएसएस कास्ट पूछता है, तो सबसे पहले आरएसएस ना कास्ट पूछता है और ना कास्ट देखकर मदद करता है. कास्ट का मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, आरएसएस नहीं. और जब आरएसएस बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि हम ओनली हिंदुज्म को फोकस करते हैं, तो हम हिंदुज्म को फोकस नहीं करते. जब स्वातंत्र के बाद भारत का भौगोलिक इतिहास पूरा नहीं हुआ था, वहाँ पे दादर नगर हवेली और गोवा जैसे क्षेत्र भी भारत में नहीं आते, और वहाँ पे आरएसएस संघ गया और हमारा भारत का झंडा फैलाया था, ना कि कोई भगवा झंडा. और ये है कि हम कोई हिंदुज्म और ये नहीं करते, बल्कि पूरे देश को साथ लेकर चलते. थैंक यू. आप ऐड कर दीजिए इसमें 85 पे रिप्लाई के लिए. ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि रिलीजन का मुद्दा आरएसएस नहीं कॉन्स्टिट्यूशन रखता है. ये उनके वर्ड थे, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिलीजन का मुद्दा रखता है? कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन का मुद्दा नहीं रखता, कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट को स्टेट करता है. मेरे बात को ध्यान से सुनो, मैंने ये नहीं कहा कि वो रिलीजन को स्टेट करता है, मैंने ये कहा कि वो कास्ट को स्टेट करता है. लाइक ऑपोजिशन साइड सेड दैट कि हम कास्ट को ये करते हैं कि आरएसएस कास्ट को देखकर फेवर करता है, तो हम किसी के कास्ट को देखकर कभी फेवर नहीं करते. माननीय सदस्य ने कहा था कि आरएसएस जो है अपना हिंदू कल्चर बचा रहा है. तो सर आई वुड लाइक टू से 79.8% हिंदू पॉपुलेशन में से सिर्फ 0.002% ऑफ पॉपुलेशन को संस्कृत बोलना या लिखना आता है. अगर हम अपनी एंशिएंट लैंग्वेजेस की बात करें, पाली, प्राकृत, संस्कृत, जिसमें हमारी महान बुक्स लिखी गई, जैसे महाभारत, वेदास, मनुस्क्रिप्ट्स, तो इन लोगों ने वो कल्चर क्यों प्रिजर्व कर पाया? और फर्दरली मैं ये बोलूंगी कि जैसे कि अगर आप कल्चर प्रिजर्व करोगे तो आप मणिकर्णिका घाट के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे अपनी? जब गंगा में इतना पॉल्यूशन है पानी का, तो आप अपनी आवाज उसके लिए क्यों नहीं उठा रहे? क्यों नहीं कल्चर प्रिजर्व कर रहे आप अपना? गंगा में फीसद क्वालिफिकेशन लेवल 500 एमपीएन होना चाहिए, लेकिन बनारस के कई घाटों में 500 से 16,000 एमपीएन तक मिला है. When you're talking about cultural preservations, then why don't you raise your voice against the sensitive topics? इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए डिप्टी लो एलओपी. माननीय सभापति महोदय ये कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज का आरएसएस माइनॉरिटीज का ध्यान नहीं रखते. मैं इनको बता देना चाहूंगा, वनस्पति कल्याण आश्रम जो 1952 में खुला था, उसने 52,000 से ज्यादा मेरे देश में जाके माइनॉरिटीज की हेल्प करी है. ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स का रूल फॉलो करते हैं, डिवाइड एंड रूल. आरएसएस बना इसलिए था ताकि ब्रिटिशर्स का राज हटे और हिंदुत्व को आगे बढ़ा जाए. धन्यवाद. सर, तो उनका कहना ये था कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस रहते हैं, अगर किसी कॉलेज में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, उनका ये कहना है कॉलेजेस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि कॉलेज में कास्ट पूछा जी. तो सबसे पहले मेरी आपसे एक प्रश्न है, इस प्रश्न के ऊपर आपका प्रश्न है, उसका उत्तर भी दूंगा. कौन से कॉलेज की एजुकेशन पॉलिसी आरएसएस डिसाइड करता है? बिकॉज जो आरएसएस वाले स्कूल्स रहते हैं, जो विवेकानंद मठ के अंदर आते हैं, उसमें तो कहीं भी कास्ट पूछा नहीं जाता है. उसमें आपको आपकी आर्थिक परिस्थिति में आपको एडमिशन दिया जाता है और स्कॉलरशिप और आपको स्कॉलरशिप दी जाती है. दूसरी बात, अगर बीजेपी को ये लोग डायरेक्टली आरएसएस से अफिलिएट कर रहे हैं, तो क्या हम कांग्रेस को उस ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएट करें जिसका नाम सुनने से छिड़ जाता है, विच इज द स्कॉलर्स फाउंडेशन? तीसरी बात,
तीसरी बात, एक और बात कहना चाहूंगा, अगर कास्ट की बात आई है तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी सिर्फ और सिर्फ कास्ट बेस्ड माइनॉरिटी नहीं देखते हैं, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, वो कल्चरल माइनॉरिटी, वो रीजनल माइनॉरिटी, ये सब भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नागपुर में एक कॉलेज है बहुत प्रतिष्ठित, वो कश्मीरी पंडितों को अलग से रिजर्वेशन देता है, तो क्या उधर कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन दिया जाए तो क्या इसमें भी आरएसएस इन्वॉल्व है? कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन देने का कास्ट पूछने के लिए। अब आखिर में एक दो बस मैं चीज बोलना चाहूंगा सभापति महोदय। सबसे पहले उन्होंने कहा, इन्होंने एक चीज इतनी बुरी कही है सभापति महोदय, आज मेरा दिल तार तार हो गया सुन के। इन्होंने हमारा और आपका कल्चर कर दिया सभापति महोदय। इन्होंने अपने स्पीच में कहा आपका कल्चर हिंदुओं का कल्चर है, आपका कल्चर गंगा बचाना है। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की एक पंक्ति भूल जाते हैं कि मैं गंगा का पानी पी पी के शहनाई बजाता हूँ और काशी विश्वनाथ में शंकर बाबा को पूछता हूँ। उनका कल्चर हिंदू कल्चर था, हमारा कल्चर निजामुद्दीन साहब का कल्चर है, हमारा कल्चर भारतीय कल्चर है, कोई हिंदू कल्चर नहीं। आपने ही अलग कर दिया अपने आप कौन से और हमको आपसे। आखिरी बात, ये स्पीच कही गई सभापति महोदय, तो मैं बताना चाहूंगा आरएसएस का फुल फॉर्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, कोई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं होता है। अगर उनके नाम में ही एक कम्युनल नाम है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम में ही एक रिलीजन का नाम है और वो देशभक्त हो सकती है, वो सेक्युलर हो सकती है, लेकिन अगर एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये कैसे कम्युनल हो सकती है सभापति महोदय? मेरा इनसे प्रश्न रहेगा। धन्यवाद। डिप्टी एलओपी का जवाब। मैं फिलहाल इस बात पर रिसर्च करके जवाब देना पसंद करूंगी, लेकिन मेरा इनसे क्वेश्चन है। एलओपी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन है एलओपी साहब जवाब। तो मेरा पहला जो अभी तक डिस्कशन हुआ उसमें मेरा एक सवाल है, जो मोरल वैल्यूज की बात आई और जो आरएसएस ने किस किस चीज पे कंट्रीब्यूट किया है, मैं उस चीज पे बोलना चाहूंगा कि जो कम्युनल वायलेंस और राइट्स आरएसएस के थ्रू भी हुए हैं 2024 में, यहाँ पे 32 लोग मारे गए हैं 2023 में, जो कि कम्युनल राइट्स बाय आरएसएस ऑर्गेनाइज किए गए थे, और 2024 में 59 लोग मारे गए हैं, जिसमें मॉब लिंचिंग हुई है सर मॉब लिंचिंग, जिसमें ऐसे आरएसएस ने कहा कि वो हर रिलीजन के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल सही सर, 9 मुस्लिम मारे गए, 11 लोग टोटल डेथ हुई है, एक हिंदू मारा गया, एक क्रिश्चियन मारा गया। सर जब इनके ईगो पे हर्ट होता है तो ये चर्च के बाहर जाके वहां पे वैंडलाइजिंग करते हैं, वहां अगर किसी और का फेस्टिवल होता है तो ये वहां भी पहुंच जाते हैं। आरएसएस वैंडलाइज करता है सर जो आपका पहले पॉइंट तो सुन लो, क्या क्या आप बताइए। सर जो मॉब चर्च को कौन वेंडलाइज करता है? आपने कहा ना कि चर्च को वेंडलाइज किया, कौन वेंडलाइज करता है? बजरंग दल कम्युनिटी। तो अभी यहाँ बजरंग दल पर डिबेट हो रही है। सर जो एफिलिएटेड है सर, ये दे आर द पेरेंट वन एंड द बजरंग दल इज द यूथ वन। इसमें मैं जवाब दूंगा उनसे, और मुझे उम्मीद है कि आप जो बात रख रहे हैं उसमें सोर्स भी होगा आपके पास। Okay. So if RSS सब जनों के लिए हेल्प करता है, then I would like to ask you what they did for श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, जो कि जम्मू कश्मीर में बंद हुआ है जस्ट बिकॉज वहाँ पे मुस्लिम एडमिशन ज्यादा थे, जो कि उन्होंने नीट क्रैक करके निकाले, एंड नीट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन टुडेज डेट। तो उन लोगों के लिए इन्होंने इसमें बॉदर इसलिए नहीं किया जस्ट बिकॉज वहाँ पे मुस्लिम की क्वांटिटी ज्यादा थी एंड इनको को उनसे अफेक्ट नहीं हुआ। तो 3 पॉइंट्स हो गए, वैष्णो देवी, चर्च वैंडलाइजेशन, बजरंग दल। उसका जवाब दीजिए। सर पहली बात तो सबसे पहले वैष्णो देवी जी का आ जाएगा। मैं कश्मीर से आता हूँ सर, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हमारी फैमिली उसमें प्रताड़ित हुई थी उस जेनोसाइड में 1990s के। मैं बताना चाहूंगा, आप जैसे आपने कहा वैष्णो देवी जी का जो इंस्टीट्यूट था मेडिकल साइंसेज का वो बंद कर दिया गया। कश्मीर में सरकार किसकी है? वो सरकार अलाय किसकी? जैसे कहा गया कि बजरंग दल आरएसएस का अलाय है, वैसे जम्मू कश्मीर की सरकार अलाय किसकी है? इनकी है ना। तो आपने रोका क्यों नहीं? आपने अपने अलाय पे पार्टनर, आपने आप सुनने की क्षमता रखिए, अब मेरा समय है। आपने अपने अलाय के ऊपर सपोर्ट देते हुए आपने उनसे प्रेशर डाल के वो डिसीजन रुकवाया क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात, चर्च फेडरलाइजेशन की बात आई है, एक सोर्स दे दे मुझे कि इंडिया में पूरे भारतवर्ष में जब से भाजपा आई है सिर्फ और सिर्फ एक चर्च तोड़ा गया हो अतिक्रमण के अलावा। अगर आरएसएस, अगर विश्व हिंदू परिषद, अगर बजरंग दल ने एक भी चर्च, एक भी मस्जिद तोड़ी होगी अगर 2014 के बाद
तो मैं अपना पद से त्याग करने को तैयार हूं अगर आप सोच देते मुझे तो। और प्लीज वायर और क्विंट इनके वायर और क्विंट के सोर्सेस मत दीजिएगा, बस गवर्नमेंट सोर्सेस चाहिए मुझे या कोई न्यूट्रल बॉडी सोर्सेस चाहिए। और तीसरी बात बताना चाहूंगा सभापति महोदय, जैसे इन्होंने एक और चीज कही थी अभी कि बजरंग दल जो है ये वैंडलाइजिंग करता है, ये लूट मार करता है और राइट्स करता है। मैं बताना चाहूंगा कि जो राइट्स हुए थे नागपुर में 2025 में, उसको सबसे ज्यादा अगर रोका गया था वो आरएसएस के स्वयंसेवकों ने रोका गया था, बिकॉज वो हुआ भी वो जो हुआ भी हेडक्वार्टर्स के पास में था, जो महल में आता है, उधर से एक टुकड़ी 200 स्वयंसेवक की गई थी, जिन्होंने हिंदू पक्ष को भी रोका था, जिन्होंने मुसलमान पक्ष को भी रोका था। और लास्ट में सभापति महोदय, आई वुड लाइक टू सबमिट यू वन थिंग, मैं एक पॉइंट ऑफ इंक्वायरी, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। इन्होंने इतना बड़ा एलिगेशन उठाया है सभापति महोदय आरएसएस पे कि आरएसएस ने दंगे करवाए जिसमें 11 लोग मरे। इसके सोर्सेस मुझे अगर आप दिलवा देंगे थ्रू कि कहां आरएसएस इन्वॉल्व इन दंगों में, तो मैं बहुत आभारी रहूंगा सभापति महोदय। धन्यवाद। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। हाँ, और ये जो उन्होंने नागपुर राइट्स की बात कही है, तो उस पर मैं चाहता हूँ आप सारे लोग जवाब दे दें। नागपुर राइट्स में आपकी क्या इंफॉर्मेशन कहती है? वन ऑफ द महल के पास जो एक मस्जिद थी और रमजान का बड़ा पाक महीना था, उस वक्त जो लोग नमाज पढ़ के निकल रहे थे तो उसपे सर पत्थर फेंकना और जो एसिड के गोले फेंकना, ये कहाँ का आई मीन कहाँ का नॉर्मल? किसने पत्थर फेंके? एक मिनट साहब प्लीज, आप पूरी बात रखिए। आपका क्या कहना है? मतलब एक मिनट, आपका ये कहना है कि आप जब नमाज पढ़ने जा रहे थे तो उस पर पत्थर फेंके गए? सर जब जो मन था आराम से एक मिनट नीचे अपनी बात एक्सप्लेन करिए, समय लेके एक्सप्लेन करिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? नागपुर राइट्स क्यों हुए, जरा इसको एक्सप्लेन करिए। नागपुर राइट्स क्यों हुए, इसको एक्सप्लेन करिए। आपका क्या अंडरस्टैंडिंग, फिर मैं उनसे जवाब ले लूँ। सर जो मन था होली मंथ रमजान, उसमें सबसे ज्यादा जो चीज है सेलिब्रेट की जाती है, तो उसमें जो मुस्लिम नमाज पढ़ रहे थे, रात का वक्त था एंड इट वाज अबाउट 10:30 PM, तो उसमें जब लोग नमाज पढ़ के निकल रहे थे तो कुछ लोगों को भड़काया गया था, जिसके द्वारा भड़काया गया था आरएसएस, दैट्स माय क्वोटिंग। एंड जो लोग वहाँ पे पत्थर फेंक रहे थे, उसके द्वारा जो राइट्स हुए थे, उसमें सर कुछ दिनों के लिए वहाँ पे लोग नमाज भी नहीं पढ़ पा रहे थे और नमाज के लिए जा भी नहीं पा रहे थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इतना ही पीस में बिलीव करते हो तो फिर वहाँ पे इतना अनकंट्रोल्ड माहौल क्यों बना था पूरे नागपुर में? और जो एक मिनट, जो गणेश भगवान की मूर्ति तोड़ी थी, गाड़ियों में जो मूर्तियां रखी थी गणेश भगवान की, चलिए कोड नंबर 81 उसका जवाब दे दीजिए। कोड नंबर 81A। सबसे पहले आपका क्या कोड है? केस नंबर 183। ओके, कैन आई स्पीक विदाउट माइक? जी आप प्लीज। सबसे पहले अपोजिशन ने जो उठाया है कि पत्थर फेंके गए थे या आए थे, नहीं माइक ले लीजिए। या जो पत्थर या एसिड जो भी आपने कहा रमजान के महीने में गुजरे, तो आपको मैं बता दूं कि उसका मैं भी आई विटनेस रहा था और उसके जो न्यूज आई थी और जो रिपोर्ट लिखी थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर में कहा था कि राइट टू पीस, जो पीस होना चाहिए, उसमें ना ही आपने जो सीधा सा एलिगेशन लगाया कि वो पत्थर हमने फेंके थे, तो आप मुझे बता दीजिए कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें आरएसएस ने फेंका है या मुसलमान ने फेंका है या किसी और ने फेंका है। जो टुकड़ी जो न्यूज की कंक्लूजन निकली थी उसमें ये कहा था वो लोग मुंह पे नकाब, मुंह पे गमछा बांधे हुए थे, ना कि सर पे टोपी या भगवा पहने हुए थे। तो आप किसी को ना ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ना ही ये बोल सकते हैं वो बजरंग दल ने कराया, आरएसएस ने कराया, ये मुसलमान ने कराया। सर मैंने ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जब इनको प्रॉब्लम है कि अपोजिशन पार्टी जब बोल रही है कि आपके कॉलेजेस में रिलेटेड टू आरएसएस, ठीक है, रिलेटेड टू आरएसएस कॉलेजेस में, नहीं उन्होंने रिलेटेड टू आरएसएस नहीं कहा, पर टॉपिक वो था ना, उन्होंने बोला कॉलेजेस में उन्होंने थोड़ा सा एक कॉमन बोला, उन्होंने कहा कास्ट पूछी जाती है, बट इनको प्रॉब्लम है ना कि आरएसएस हम नहीं चलाते। और अभी मैंने 3-4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूलिंग पार्टी से उनकी स्पीच सुन ली, ये जितने भी आरएसएस टॉपिक चल रहे हैं उनमें सिर्फ हम कर रहे हैं। तो इज आरएसएस अ पार्ट ऑफ बीजेपी? मतलब
एनजीओ के बारे में बात चल रही है कि लीडिंग पार्टी के बारे में, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बिकॉज reply करें। कंटिन्यूअसली सेइंग कि हम आप रिप्लाई करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बीजेपी के और संघ को साथ साथ जोड़ के देखते हैं। बस एक पंक्ति के द्वारा मैं कहना चाहूंगा, तू ये कहता है रिश्तों की दुहाई देंगे, तू ये कहता है रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे, हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं जो सुनाई देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चीज है, जब राष्ट्र हित की कोई भी बात आती है तो इनके पेट में जरूर दुखता है, पेट बहुत जम से दुखता है। उसकी मेडिसिन क्या? खुद को संतुष्ट करने के लिए फेक नैरेटिव की गंदी राजनीति इन लोग करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इन लोगों ने अफजल गुरु को सपोर्ट करे थे और जेएनयू के जो स्टूडेंट थे जो देशद्रोही नारे लगाए थे, मान्यवर उनका नाम था उमर खालिद, जो बोलता है पीओके है, पीओके जो है कश्मीर इंडिया का इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। और शर्गिल इमाम ये बोलता है शिलीगुड़ी कॉरिडोर जो 22 किलोमीटर का बस है, 5 लाख उधर जमा हो, 5 लाख लोग जमा हो और ये 7 सिस्टर्स है उसको देश से अलग कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा इन लोग की रिप्लाई में, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफसल निकलेगा, वो नहीं चलने देंगे जिससे अफसल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सीए बनकर दहाड़ दो, एक तिरंगा झंडा, वो अफसल, वो देशद्रोही, वो विरोधी, वो आतंकवादी के सीने में गाड़ दो। कोड नंबर 31 या कोड नंबर 139। उमर खालिद को एंटी नेशनल बोल दिया भाई, हंसी आ रही है थोड़ी सी। एनीवेज, उमर खालिद को एंटी नेशनल बोला, सोनम वांगचुक का क्या, उसके लिए क्या दिया? सोनम वांगचुक एंटी नेशनल नहीं है। एंड एनीवेज सर, उन्होंने मेरे कोर्ट में कुछ लेके कहा था कि खुद के देश को विश्वगुरु बोलने में शर्म आती है। मेरे को शर्म नहीं आती, पर गर्व नहीं होता। एमपी जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जहाँ पे इंदौर जैसा नहीं, इंदौर जैसी सिटी जहाँ पे आरएसएस हाईली एक्टिव है, वहाँ पे 2 बच्चों को चूहे ने कुतर के मार दिया इस हॉस्पिटल में जहाँ पे आरएसएस का था मेंबर। व्हाट अबाउट दैट? इंदौर में 18 लोग, इंदौर में गंदे पानी के कारण 18 लोगों की डेथ हुई। उसके लिए आरएसएस ने क्या किया? दिल्ली में जनवरी में 2026 के पहले मंथ में 800 पीपल आर मिसिंग। व्हाट अबाउट दैट? एंड इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बेस्ट शेटलर्स है उन्होंने दिल्ली में आके गेम खेलने से मना कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो आरएसएस उसके लिए क्या कर रहा है? 30 सेकंड, दोनों को 30 सेकंड जल्दी। सर, सभापति महोदय, इन्होंने जैसे कहा है कि भोपाल या इंदौर में जैसे कि रैट पॉइजनिंग, जो फूड पॉइजनिंग हुए से कुछ लोग मर गए, उधर आरएसएस का एक मेंबर था, 2 बच्चों को कुतर के खा लिया चूहों ने। इनका क्या कहना है कि हम हर व्यक्ति के पीछे आरएसएस का व्यक्ति खड़ा करेगा उसकी सुरक्षा के लिए। आरएसएस अगर कुछ करता है तो समूह में करता है, उसका प्रूफ अगर आपको चाहिए सभापति महोदय तो मैं आपको अभी दे सकता हूं कि आरएसएस ने क्या क्या किया है भारत के लिए, भारत के स्वतंत्रता के लिए, और आगे उसके उस जितने भी डिजास्टर्स हुए सभापति महोदय और फिर जितने भी 1993 के मैं आपको सबमिट करना चाहूंगा, आप एक बार देख लीजिए सभापति महोदय। सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट जिसमें सारे एक लाइन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा है कि आरएसएस ने समूह में कब कब भारत को बिना जात बिना धर्म पूछे हेल्प किया है, किसी का आधार कार्ड पूछ के उसको हेल्प नहीं किया है जैसे आपके कुछ लोग करते हैं। आगे जाके एक और चीज बोलना चाहूंगा, जैसे इन्होंने एक और चीज कही थी अभी कि इन्हें गर्व नहीं होता है, लेकिन इनको लज्जा भी नहीं आती, इनको गर्व होता है। मैं कहना चाहूंगा ये ऐसे लोग हैं जो उमर खालिद को अपना गुरु मानते हैं, जो भारत के टुकड़े करने की बात करता है और जो संस्था भारत की जितनी भारत की भूमि है इसको अखंड रखने की बात करती है, उसको अखंड रखने के लिए पूरे प्रयास करती है, उनको ये एंटी नेशनल कहते हैं। आपसे बड़ा एंटी नेशनल कोई नहीं है। सोनम वांगचुक एंटी नेशनल है, उमर खालिद एंटी नेशनल है, शर्जील इमाम एंटी नेशनल है, गुलाम गाजी एंटी नेशनल है, आप एंटी नेशनल हो। धन्यवाद। सर, मैंने ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछा कि आप आरएसएस है या बीजेपी या क्या है, तो मुझे उसका आंसर तो बिल्कुल मिला ही नहीं। और दूसरी चीज, जब मैं सवाल पूछ रही हूँ तो आप इनको क्यों टारगेट कर रहे हो, इनका पेट दुख। अरे मैं पूछ रही हूँ तो मुझे जवाब तो मिलना चाहिए, मुझे जवाब नहीं मिला, बदले में मुझे मिली 4 शायरी जो कि समझ में भी नहीं है।
दिमाग है तो आंसर देने बोलिए इसके ना बाद सर। गो फॉर द वोटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करके। आदरणीय सभापति महोदय जी, एक संस्कृत का श्लोक, त्रेतायां मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संग शक्ति कलो युगे। यहाँ पर साक्षात समझ में आ रहा है कि कलयुग में संगठन की शक्ति ही है जो चीजों को सुधार सकती है। अपोजिशन हमारा तुम्हारा करके हमें अलग कर देता है। अरे संघ केवल हिंदुओं का या ब्राह्मणों का नहीं है, हम तो स्वागत करते हैं हर किसी का, बस वो राष्ट्रप्रेमी होना चाहिए। तुकाराम महाराज का एक बहुत अच्छा अभंग है कि हरि मुखे मणा आमी तेने सुखी। मैं वैसे कहता हूँ, राष्ट्रहित तुम्ही मणा आमी तेने सुखी। हम हर किसी को वेलकम करते हैं, ऐसे हमारा तुम्हारा करके अलग मत कीजिए। और खेत सिर्फ इसी बात का है कि जाए संघ में। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए, आपने तो बोला नहीं। Honorable Speaker, respected members of Parliament and this August House, I rise today to question whether the RSS is truly the force of nation building or just an ideological movement which clashes with constitutional values. Yes, RSS has done many good things like building schools, contribution in education, contribution in disaster management sectors, but service alone does not define nationalism. Commitment to the Constitution does. Also, I would like to highlight the point that RSS was in the pose of one of the most important and historical movement, the Quit India movement. Where was RSS back then? Now, I will address some cases that will put the limelight on the ideology of the RSS. First, single ideology. With this, I close here. Thank you. आपके बीच में आप बताइए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस पावन धरती पर आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर हमें बोलने के लिए मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खुशी होती है जब पता चलता है कि संघ अपना 100 साल पूरा कर रहा है, लेकिन संघ के कुछ ऐसे कार्य रहे हैं कि उन्हें समय समय पर सरकार द्वारा ही बैन किया गया है। और हमें खुशी होती है कि जब संघ बाकी चीजों को छोड़ के अखंड भारत की भी बात करता है, तब हमें खुशी होती है। लेकिन इस बात पर भी आपत्ति लगती है कि संघ को एक बार नहीं 3 बार बैन किया गया है। आप बताइए, आपको कुछ बोलना चाहते हैं। सभापति महोदय, 1947 में जब कश्मीर को विलय कराना था भारत में, तो गोवलकर जी सबसे पहले खड़े हुए थे। ये बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए सभापति महोदय। और राजा हरि सिंह से उन्होंने पर्सनली मीटिंग करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसमेंट एक्ट साइन कराने के लिए उनको प्रेरित किया था, जिसका सोर्स अरुण भटनागर की बुक इंडिया शेडिंग द पास्ट पेज नंबर 240 में हमको मिलता है। सभापति महोदय, 1962 में जब चाइना ने भारत पर अटैक किया था, तो उस समय सबसे आरएसएस ने कंधे से कंधा मिलाकर उस समय की सरकार का सपोर्ट किया था, क्योंकि उस समय नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। और 1963 की 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद उनको न्योता भेजा था स्वयंसेवकों को कि वो परेड में आके शामिल हो। सब 10 सेकंड सभापति महोदय, हिंदुत्व की बात की जाती है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, हिंदुत्व एक धर्म से नहीं, एक मजहब से नहीं जुड़ा, हिंदुत्व जीने की विचारधारा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको एक पंक्ति में बताया था, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कम मैंने अत्याचार किए, हिंदू होने पर कम मैंने घर घर में नरसंहार किए। वही तो पता है काबुल में जाकर मैंने कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं मानव का हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन पर हिंदू जीवन रख रही हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। इधर से और कौन है जिसको जो अपनी बात रखना चाहता था, जिसकी स्पीच रह गई है? इतिहास केवल किताबों में कैद पन्ने नहीं, बल्कि उन बलिदानों की गूंजे जिसे अक्सर मुख्यधारा की चर्चाओं में भुला दिया जाता है। क्या आजादी केवल 1947 की एक तिथि थी, या उस अखंड भारत का संकल्प था जो दादर और गोवा की मुक्ति के बिना अधूरा था? महोदय, इस यात्रा की शुरुआत सत्ता की लालच से नहीं, बल्कि एक 19 वर्ष के छात्र केशवराव जी के उस वंदे मातरम के उद्घोष से हुई थी, जिसके लिए उन्होंने अपना भविष्य दांव पर लगाकर स्कूल से निष्कासन स्वीकार किया था। 1925 में विजयदशमी के दिन रोपा गया यह बीज आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। 1947 में अंग्रेज गए पर पुस्तकें डटे रहे, तब दादर नागर हवेली और गोवा की गलियों में तिरंगा फहराने के लिए गोलियां और लाठियां खाने वाले कोई और नहीं, स्वयं सेवक थे। 1962 का इंडो चाइना वॉर हो और 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में स्वयं नेहरू जी का आमंत्रण, 3,500 स्वयंसेवकों की वह पश्चात इस बात का प्रमाण है, जब देश पर संकट आता है तब संघ ही सरकार का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनता है। विभाजन की विभाषिका हो या प्राकृतिक आपदा, 3,000 से अधिक राहत शिविर लगाकर भूखों को भोजन देना और
बेघरों को छत देना इनकी परंपरा रही है। सर जस्ट 10 सेकंड। अनुच्छेद 370 का विरोध करना हो या 1975 की आपातकाल में लोकतंत्र की भलाई के लिए जेल जाना हो, आरएसएस हमेशा सामने रहा है। संघ हमेशा लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ा है। यह संगठन भारत की सुरक्षा कवच और जिसके आधुनिक इतिहास पे अधूरा है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मिटा दिया जिसने खुद को देश की आन पर, गर्व है हम ऐसे संगठन और उसकी शान पर। धन्यवाद। Now code number 168. एक ही बात कहना चाहूंगी, आरएसएस का केवल एक ही विचार था, राष्ट्र सर्वोपरि। आरएसएस ने शुरू से स्पष्ट कहा है, संघ सत्ता का संगठन नहीं समाज का संगठन है। इसलिए संघ ने राजनीति को लक्ष्य नहीं बनाया बल्कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग चुना। अगर आरएसएस केवल वैचारिक आंदोलन होता तो वो भाषणों तक सीमित होता, लेकिन आरएसएस का विचार आपदा में सेवा बनकर उठता है। बाढ़ हो, भूकंप हो या महामारी हो, मीडिया से पहले आरएसएस का कार्यकर्ता वहां सेवा देने पहुंच जाता है। आरएसएस की जड़ें सनातन हिंदू धर्म से जुड़ी है, जो जीवन जीने की पद्धति सिखाती है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वभवन्तु सुखिनः, यही मूल संस्कार है। और आप लोगों के विरोध के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, आरएसएस एक नशा है देशभक्ति का, जो गद्दारों को चढ़ेगा नहीं और राष्ट्रभक्तों को उतरेगा नहीं। कोड नंबर 188। ऑनरेबल स्पीकर महोदय, मेरा नाम अविष्कला पठान, चेस्ट नंबर 183। नाम से पहले काम को चुना गया, नाम से पहले काम को चुना गया, यश को नहीं राष्ट्र को बुना गया है। हर पीढ़ी को भारत के लिए तैयार किया है आरएसएस। मैं 1925 से लेकर 2025 तक अगर आरएसएस के काम बताने आ जाऊं तो शायद ये वक्त और ये सवाल छोटी पड़ जाए। वो भारत का क्या बोलते गोवा का पोर्चुगीज से फ्री कराना हो या 1962 का इंडो पाकिस्तान वॉर हो या कोई भी सिख रिवॉल्यूशन हो, उसमें आरएसएस सबसे पहले खड़ी हुई। आप कहते हैं हम धर्मों में जाते हैं, हम धर्मों को और हिंदुत्व को बढ़ाते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम दनियाल साहब की ह्यूमैनिज्म इंटीग्रल को हमारी आइडियोलॉजी मानते, ना कि हिंदुत्व को। हम ये कहते हैं हमारे लिए इंसानियत सबसे पहले है, इसलिए हर बुरी मुसीबत में जब देश पे संकट की घड़ी आती है तो आरएसएस का हर एक व्यक्ति और मेंबर उसी तरह खड़ा है जिस तरीके से आपके साथ में आपकी सरकार और आपके भाई खड़ा है। हम आरएसएस को किसी के लिए और किसी के लिए रोकते नहीं है, हम सबको आने का मौका देते हैं। लास्ट माननीय अध्यक्ष महोदय, अविचार प्रवृत्तस्तु विनाशोपजायते, विचार प्रवृत्तस्तु लाभोपजायते। अर्थात विचारहीन कर्म विनाश की ओर ले जाता है और विचार युक्त कर्म प्रगति कराता है। यह सिद्धांत आज के विषय की कुंजी है। अधिकांश लोगों का यह मानना है कि आरएसएस की विचारधारा हिंदुत्ववादी है। मैं इससे सहमत हूँ, परंतु पहले यह जानना होगा कि हिंदुत्व क्या है। So, according to Behouzi inscription written around 520 BCE, the term Hindu was not a religious but a geographical identity used to describe the people living beyond the industrial. मतलब यह एक भौगोलिक, I repeat, भौगोलिक संज्ञा है जिसका किसी भी धर्म, मजहब या पंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में आरएसएस की जो विचारधारा है वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, जहाँ व्यक्ति, संगठन या समूह से पहले देश का हित रखा जाता है। ओके, थैंक यू। अब वी आर कंक्लूडिंग दिस सेशन। लास्ट राउंड, यू स्टार्ट, फिर आपका, फिर आपको। बिल्कुल धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा आरएसएस को अगर ये नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते हैं तो 1947-48 वॉर, 1962 वॉर, 1965 वॉर, 1971 वॉर, 1999 वॉर, इन पांचों वॉर में सिविल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, फूड सपोर्ट, हर प्रकार का सपोर्ट आरएसएस ने दिया है और इसमें 71 शहीद भी हुए हैं। और एक और चीज जैसे कि अभी उन्होंने एंटी नेशनल की बात करी, तो मैं कन्हैया कुमार जी को कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं कहना चाहूंगा कि हिल जाएगा दस्तूर एक दिन इंशाअल्लाह, मिल जाएगा कश्ती साहिल इंशाअल्लाह, लहरा देंगे अमर तिरंगा लाहौर और कराची पर, लहरा देंगे अमर तिरंगा लाहौर और कराची पर, भारत तेरे टुकड़े होंगे तुझमें शामिल इंशाअल्लाह। थैंक यू। बहुत पोएट्री सुन ली, अब कुछ काम की बात। आरएसएस से प्रेरित संगठन बिना किसी धर्म या जाति के भेदभाव किए समाज के हर वर्ग के लिए काम करते हैं। 35,000 प्लस सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स और 2 लाख प्लस वॉलंटियर्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं।
कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान आरएसएस लिंक वॉलंटियर्स ने 4.5 करोड़ फूड पैकेट, 90 लाख मास्क और 60,000 ब्लड डोनेशन कोऑर्डिनेट किए। हेल्थ केयर में नेत्र कुंभ के तहत 2.37 लाख फ्री आई टेस्ट हुए और 17,000 से ज्यादा कैटरेक्ट सर्जरीज हुई। सर, फॉर आरएसएस, हाँ ओके, मैंने जितने भी सोर्सेज देखे मुझे ये चीज पता चली कि आरएसएस के सेल्फ रिलीज डेटा बहुत सारे हैं, तो आई जस्ट प्रपोज स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट बॉडी व्हिच री-एग्जामिन्स द डेटा व्हिच इज रिलीज्ड बाय द आरएसएस। थैंक यू सो मच। बताइए। तो सबसे पहले कि उमर खालिद को एंटी नेशनल बोला गया, सोनम वांगचुक जो कि मेरे अकॉर्डिंग में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, उन्हें एंटी नेशनल बोला गया। तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये रिकॉर्ड सोनम वांगचुक को यहाँ पे किसी ने एंटी नेशनल बोला है, सर ऑन रिकॉर्ड उन्होंने सोनम वांगचुक का एंटी नेशनल बोला। आप बताइए, बोलिए। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आरएसएस जो ये कर रहे हैं, जो मेरे नेशनल फ्लैग पे अपना खुद का भगवा फ्लैग लहरा रहे हैं, क्या वो ये एंटी नेशनल नहीं है? मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा एंटी नेशनल है। जो भगवा रंग मेरे तिरंगे में लहरा रहे हैं, मेरे लिए वही सबसे बड़ा एंटी नेशनल है सर। बस मैं इसी बात से कंक्लूड करना चाहूंगा कि तिरंगा नेशन आगे जाना चाहिए सर, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन। लोग आगे एजुकेटेड होने चाहिए, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सर। 10 seconds reply. Last. Concluding. 10 seconds reply. आप जी फाइनेंस मिनिस्टर 10 seconds reply. नहीं, आप एक लाइन सुनिए आपने, नमस्ते सदा वत्सले मातरम, ये आरएसएस की लाइन है जो भारत माता के लिए गाई जाती है। सुनिए आपने, रही बात वो फोटो, सबसे पहले तो फोटो दिखाना अलाउड नहीं है, और दूसरी बात आप स्क्रीन जिस पे कौन सी लीगल वेबसाइट या कहां पे वो फोटो है, उसे सोशल मीडिया की बात मत करिए, बहुत चीजें वायरल होती है। कहां से फोटो निकाला आपने वो दिखाइए, कौन से, हां एग्जांपल कहीं की भी बात मत कीजिए, दिल पे हाथ रख के बोलो, दिल पे हाथ रख के। मैं आपने फोटो निकाला, आप बताइए ना कहां से फोटो लाया, कौन से सोशल मीडिया पेज से उठा के लेके आए एंटी नेशनलिस्ट, वो बातें यहां मत कीजिए प्लीज। एआई नहीं बताइए लोग यहाँ पे बैठ के। चलिए आप कोड नंबर 6 लास्ट 10 सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोनम वांगचुक पे और सारी बातों का जवाब देके कंक्लूड करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वो कर रहे यूएपीए के एक्ट के अंदर आपने एक्ट पढ़े हैं? छोड़ो, मैं किससे पूछ रहा था, नहीं पढ़े उसने। यूएपीए एक्ट मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, उनने वो काम करे होंगे। जब मान्यवर उनने जो प्रोटेस्ट करे उसके पीछे दंगा भड़क रहा है, अगर दंगा भड़क रहा है जिससे देश की सिक्योरिटी को कुछ थ्रेट है, तो उसको काहे को नहीं डिटेन कर सकते हम? अब ये इनकी ये मान्यवर इनकी ये मानसिकता झलकाती है कि ये एंटी नेशनलिस्ट कितना ज्यादा सोच करते हैं। मान्यवर ये बात कहते हैं संघ का स्वयंसेवक रोज अपनी शाखा में प्रार्थना करता है। प्रार्थना की अंतिम लाइन है परम वैभवम ने तमेव स्वराष्ट्रम, मतलब हे जन्मभूमि, हे राष्ट्रभूमि, हम तुझे परम वैभव तक पहुंचाएंगे और अर्थात भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस एक श्लोक मैं कोट करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जहाँ पे मैं बैठा था वेटिंग हॉल में, वहां पे एक श्लोक लिखा था, वो आरएसएस की मानसिकता को झलकाता है। चंदनम शीतलम लोके चंद्रानादपि चंद्रमः, चंद्र चंदन यार मध्ये शीतला साधु संगति, मतलब इस संसार में सबसे ज्यादा शीतल चंदन है। अगर चंदन की तुलना करा जाए तो चंद्रमा उससे ज्यादा शीतल है, और चंद्रमा तथा चंदन की तुलना से सज्जन व्यक्ति की संगति सबसे ज्यादा शीतल है और शांति प्रदान करती है। तो यह संगति सबसे अच्छी संगति करना सिखाती है। मान्यवर, यही राष्ट्रीय स्वयं सेवक की संगति है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Now we are concluding this session. Thank you all of you. और अब इसके बाद नेक्स्ट सत्र की हम लोग आगे बढ़ेंगे।